Good afternoon, one and all. Now we'll starting the chapter number 6. The name of this chapter is tertiary economic activities. So, before learning this chapter, I want to share something points to remember. Natural resources are obtained by primary activities. Secondary activities are dependent on products obtained from primary activities. Activities which act as a link between primary and secondary are known as tertiary activities. Second point is here, tertiary activities are mainly service providing activities. Therefore, it is called as a service sector. So keep in mind, one concept is here, service sector. So service sector means tertiary activities are mainly service providing activities. Next, buying and selling of goods, transport and communication, lodging, loading and unloading, credit facilities, marketing, import, export, etc. all tertiary activities. Then, distribution of service activities is dependent on a number of geographical factors like climate, topography, nearness to the sea, or continental location, which affect tertiary activities. हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने एग्जांपल्स देखे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, लंबरिंग, फूड गैदरिंग, ये एग्जांपल्स हो गए। उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है कि वो प्रोडक्ट लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में उसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फिनिश गुड में वो कन्वर्ट होता है, इसलिए वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब ये जो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उस प्राइमरी और सेकंडरी एक्टिविटीज को जॉइंट करती है, मतलब वो त्याला मराठी दुवा म्हणतात। तो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हमें देखेंगे कि अगेन उसको हम क्लासिफाई करेंगे क्वार्टनरी फोर्थ एंड क्विनरी मतलब फिफ्थ। तो क्वार्टनरी जो है फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें आता है एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानर्स, टैक्स कंसल्टेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, satisfaction, persons working in offices, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। क्विनरी में फिफ्थ में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, जजेस। So, considering tertiary economic activities, the services included in this sector are varied in nature. Therefore, these are categorized into quaternary, fourth, and quinary, fifth activities. So, here one question is arise, और आपके जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 का, वहाँ पे एक ब्रॉड क्वेश्चन है, उससे हम सॉल्व करेंगे। Question number 1, explain the factors affecting trade between two countries. कौन कौन से फैक्टर है जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार चलता है उसके ऊपर वो अफेक्ट होते हैं, मतलब असर करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों देशों के बीच, अन्य बहुत देशों के साथ व्यापार होता है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सिंपल यहाँ पे कंट्रीज नाम लिखा है, दो कंट्रीज। अगर हम ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रेड, तो उसी के भी ये सेम पॉइंट उसके अंदर आने वाला है। आए समझ में? अभी देखो इंट्रोडक्शन, ट्रेड रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर।
Factors which affect the trade are natural resources, climate, population, culture, economic cost, specialization, etc. Now come to the point number one, that is natural resources. We know that the natural resources are the unevenly distributed in all over the world. So natural resources also playing a vital role in tertiary economic activities. Therefore, it mentioned here, number one, natural resources. Distribution of natural resources is uneven. The natural resources available in one country differs from another. Because of this uneven distribution of resources, there is a trade between resources surplus and resources deficit. मतलब कौन से रीजन में एक तो नेचुरल रिसोर्सेज सरप्लस है जो बहुत ज्यादा है, और किसी रीजन में डिफिसिट मतलब उसकी कमी है। अभी देखेंगे यहाँ पे मैं एक अपने लिए एक एग्जांपल से रखता हूँ पेट्रोलियम का, जो उसको मिनरल ऑयल कहते हैं। गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल देखेंगे, उनके पास सरप्लस मतलब एक्सेस रिजर्वायर है मिनरल ऑयल का, मतलब पेट्रोल डीजल और उसके जो सब बनते हैं वो केरोसिन है, देन वैसलीन है, और बहुत सारे मटेरियल से प्लास्टिक भी बनता है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज किसी जगह ज्यादा है तो किसी जगह में कम है। अगर दोनों देशों की कंपेयर करेंगे, रीजन टू वन रीजन अनदर रीजन कंपेयर करेंगे, वन जोग्राफिकल एरिया और सेकंड जोग्राफिकल एरिया से कंपेयर करें तो ये नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। और पेट्रोल बहुत सारे देशों की डिमांड है और वहां पे तो डेफिसिट है, मतलब उसका प्रोडक्शन होता है नहीं, माइनिंग होता नहीं, मिनरल अवेलेबल नहीं, मिनरल ऑयल अवेलेबल नहीं, तो वो क्या करते हैं, सिंपली इंपोर्ट करते हैं। और जो जिसके पास सरप्लस, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ईरान, ये जो गल्फ कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है। It means natural resources playing a vital role in tertiary economic activities. Number second, climate. Climate also playing a fundamental role in tertiary economic activities. So, see here, climate mainly affect the plants and animals in a region. In the areas of different climate, there are different types of plants and animals. Example, in tropical countries like Sri Lanka, whose major export is a tea, or Malaysia and Indonesia, whose major export in rubber. This occurs naturally because of favorable climate for growing tea and rubber plants in these countries. ये जो क्लाइमेट होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है, साउथ ईस्ट एशिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट है, उसी में भी अगर हम उसको डिवाइड करें तो कहीं हॉट डेजर्ट है, कहीं कोल्ड डेजर्ट है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा होती कहीं कम होता है। तो ये जो क्लाइमेट है उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड होता है। तो श्रीलंका में मेजर प्रोडक्शन होता है वो है टी का। तो एक्सेस होने की वजह से वो क्या करते हैं, टी को एक्सपोर्ट करते हैं, और नीड बहुत सारे दुनिया की है, बहुत सारे वर्ल्ड में उसको डिमांड है, बहुत सारे कंट्रीज में डिमांड है करके वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और टी एक्सपोर्ट करते हैं श्रीलंका। और श्रीलंका को जो चाहिए, अन्य जो चीज चाहिए वो इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से ये ट्रेड चलता है। मतलब क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। फॉर एग्जांपल हम अगर देखेंगे, हमारे पास शुगर केन का प्रोडक्ट लेते हैं और उससे बनती शुगर, तो ये शुगर को क्या करते हैं, हम इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया को जो चीज चाहिए वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल। सो
रबर प्लांट का भी आपके लिए एक एग्जांपल दिया कि रबर मोस्टली प्रैक्टिस होता है, वो मोस्टली उसका प्रोडक्शन लेता है वो दो कंट्री मलेशिया और इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ पे हेवी रेनफॉल है। ये उसको लिए रेनफॉल की बहुत ज़रूरी थी, और ये रेनफॉल हाई होने की वजह से वहाँ पे वो क्रॉप आते हैं, और वो रबर का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अभी रबर से बनते हैं टायर। अभी इसलिए जो कुछ व्हीकल्स है, साइकिल्स है, बाइसिकल्स है, ये सभी प्रोडक्शन के लिए रबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे विश्व में उसके लिए बहुत सारी डिमांड है। नंबर थ्री, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन के बारे में हमने स्टडी किया है कि ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है, ये किसी कंट्री में ज़्यादा है तो किसी कंट्री में कम है तो किसी कंट्री में मॉडरेट है। विद इन भी कंट्री उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हम देख उसका हमने स्टडी किया है। तो पॉपुलेशन साइज मतलब वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी उसकी साइज है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। दिस लीड टू डिफरेंस इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन and hence trade occurs. Standard of living can also determine the demand for various goods and services. We engage in production of goods. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब हाई होता है? जब उनका पर कैपिटा इनकम हाई होता है। किसी देश का इनकम, वो देश के लोग कौन से एक्टिविटी में एंगेज है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हम देखते हैं कि एडवांस जो कंट्रीज है, मतलब अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें हाई नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो उनका ऑक्यूपेशन जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन में वो ज़्यादा एंगेज है। हमारा इंडिया में होता है क्या, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंपेयर विथ डेवलप्ड कंट्रीज ये हमारा कम आता है। सो पॉइंट इज हियर दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग can also determine the demand for various goods and services. They engage in production of goods. Next point is here culture. Some countries are known for their specific art and craft based on their culture, specific production of goods which have worldwide market. फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी शॉल्स और इरानियन कारपेट्स। कश्मीरी शॉल को बहुत उसके ऊपर कला कसर किया है, और वो वार्म भी रहता है, इसलिए उसको जग भर में क्या है, डिमांड है। और सेकंड एग्जांपल दिया है हमें ईरानियन कारपेट। ईरान जो कंट्री, उसमें कारपेट का प्रोडक्शन होता है और दुनिया में उसके लिए डिमांड है, और वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वो एक्सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से जो कल्चरल जो फैक्टर है वो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर असर करता है। देन इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेजर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। It is cheaper to import certain goods than producing it in the country itself. For example, it is cheaper to import tea from India and Sri Lanka than producing it in England. मतलब अभी इंडिया और श्रीलंका बहुत क्लोज है, नियर है एक दूसरे से, दोनों कंट्री। उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट कम आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से। वही टी का जो प्रोडक्शन अगर हमें इंग्लैंड को हम एक्सपोर्ट करना जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए इकोनॉमिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी एक्टिविटीज में। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, specialization. Due to extremely favorable factors of production, some countries have specialization for certain goods and they have name and fame in the world market. उनका बहुत नाम होता है, ब्रांडेड होता है, हम उसको ब्रांडेड मटेरियल्स कहते हैं।
So they develop export trade. For example, watches of Switzerland or electronic goods of Japan or tender wheat of अर्जेंटीना। जो वॉचेस है, रिस्ट वॉच है, ऑल वॉचेस है, वो ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है स्विट्जरलैंड में। और क्वालिटेटिव और एक ब्रांड होता है उनका, इसलिए होता है क्या, पूरे विश्व में उसके लिए डिमांड होती है। तो डिमांड के अनुसार वो क्या करते हैं, लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, और जो प्रोडक्शन करता है वो स्विट्जरलैंड देश, वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। सेकेंड, जापान में तो बहुत सारी व्हीकल्स बनती है, कार्स बनती है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बनता है। और वो क्या करते हैं, एक्चुअली उनके पास की हिस्ट्री ऐसी कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस कम है। उनका सरफेस ऑफ दी जो लैंड है वो भी कम है। वो सिंपली एक आयरलैंड जैसा हो छोटा सा देश है, छोटे छोटे आयरलैंड मिलके वो देश बन गया। तो उनके पास रिसोर्स मटेरियल है नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी पावर ज़्यादा है। और वो टेक्नोलॉजी पावर का इस्तेमाल किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में करते हैं। और ये पूरे विश्व में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। देन government policy. Next point is here, government policy. Government policy also playing vital role about export or import affects trade. For example, government may increase import duties of some goods to encourage people to buy domestic goods. Thus, import trade of those goods goes down. गवर्नमेंट की पॉलिसी थी टैक्सेशन में कितना रिडक्शन करना है, टैक्स कितना बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को मोटिवेट कैसे करना है, सब्सिडी कैसे देना है। आने वाले जो मटेरियल है उनके लिए अगर टैक्स लगाते तो लोगों की डिमांड फुलफिल होती, टैक्स कम करते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है मार्केट में। अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ाते हैं तो मार्केट में भी उसका वैल्यू और उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती। इसलिए गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ओनियन का प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सपोर्ट करने की है तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को। अगर गवर्नमेंट ने बैंड लगाया तो एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए होता है क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी और एक फेवरेबल होना किसी एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वी आर स्टॉपिंग हियर।